मैनेजर हैं और ज़बरदस्त एक्सेलेंट करियर है इनका, ट्रेनिंग इनका पैशन और 15 साल का एक्सपीरियंस है इन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, माशाल्लाह, एग्जीक्यूटिव कोचिंग एंड कंसल्टेंसी एक्सपर्टीज इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्किल्स. प्लीज वेलकम जब टोस्ट मास्टर्स की दुनिया में ज्वाइन की तब एक स्टेटमेंट पढ़ा, थोड़ा मैंने स्ट्रगल किया उसको और काफ़ी सारी इसकी इंफॉर्मेशन दी, तो उसमें एक कोट मेरे सामने आया कि नथिंग इज मोर डेंजरस देन टोस्ट मास्टर विद द माइक. So I've been associated with training and learning and development fraternity for almost 15 years. I started my career as an operational excellence. अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो आई एम बेसिकली मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी. एंड इसके अलावा पर्सनल डेवलपमेंट पे, जैसे कि बेटे ने कहा एक बात कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट आपका पैशन होना चाहिए, आप लर्न करना चाहते हैं. आई हैड दैट सेम पैशन व्हेन आई वाज यंग. तो मैंने बोथ हैंड्स पे काम किया, पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स पे भी और प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्किल्स पे भी. दैट आई वुड लव टू शेयर विद यू बिकॉज इट्स माय हार्ड अर्न्ड लेबर. प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे बात करें तो मैं सर्टिफाइड लीन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट हूँ. ये एक टेक्निकल टर्म है. लीन सर्टिफाइड लीन मैनेजर हूँ. इसके अलावा लीड ऑडिटर हूँ ISO के कई स्टैंडर्ड्स का, 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एंड देन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, एंड देन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एंड फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. इन सब का मैं कंसल्टेंट भी रहा हूँ बहुत से. ये मेरा प्रोफेशनल करियर की अचीवमेंट थी. एंड द लिस्ट गोज ऑन. वर्थवाइल बात यह है कि लर्निंग इज स्टिल गोइंग ऑन. एंड पर्सनल डेवलपमेंट की बात करें देन I have done master practitioner neuro-linguistic programming course from UK, and then I did my certified mindfulness practitioner course from UK as well. And I'm also some of you might know OKR. I'm OKR certified OKR specialist. And then personal development में mind mapping from Tony Buzan International, वहाँ से mind mapping का भी certified course किया. And the list goes on again. So personal and professional development, and I'm still, you'd be surprised to know that I'm still registered to almost 15 courses right now at the moment. Despite my hectic life schedule, I'm still on the track of learning and development. अच्छा, अब हम आज टॉपिक की बात करते हैं. आज जो मुझसे जलानी साहब ने कहा कि कोई टॉपिक दें जिस पे आप कोई टॉक कर सकें और बता सकें लोगों को, अपने इल्म से फायदा दे सकें. And then I chose the topic confidence. Confidence is something that we all aspire and desire. Agreed. As a kid, as a grown-up professional, we all want to have confidence in our life. So let's start with some interactive session. I don't want to make it a seminary type thing where I'll be speaking and you'll be listening, and sometimes you'll start dozing off. I don't want you all people to doze off. Let's have the interactive session. Confidence से आप क्या समझते हैं? What is confidence? That's what I was expecting to have. Confidence is basically what I think of confidence. I can only explain it in the form of examples only. Right. Basically, one example of mine is standing in front of a huge crowd, speaking without stuttering a lot. Very good. Wow. That's confidence. Yeah. और कुछ बताइए अपने कॉन्फिडेंस से आपके सर. Never hesitate. If you think you are right or not, it is better. First enter it and be brave to face every and each thing. Great. Ji sir. Clarity. I think when you have clarity, you have confidence. Clarity. When you are confused, you are shattered. You can be confident confused. That's what there are certain times that's jurm. That's jurm. I would like to tell you, like, if you are confident, even if you don't know the expertise, you are in a better position to deal with difficult situations. There's a fine line between. That's criminal. There's a very fine line between confidence and Overconfidence. overconfidence. Sir, confidence in my mind. You just convey your message to others. Right. This is the confidence.
It's clear. Otherwise, if you have lots of questions, lots of something, you share it. What you want to say, something to an audience or crowd or individual, everyone each. See the beauty of Toastmaster. You just put a question forward and you have a hell of a speech going on. Right, great. Thank you. Why not Abir? Yes, sir. कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने अंदर वो सारे टूल्स के बारे में, तैयारी के बारे में प्लान करना और फिर इस एतमाद के साथ आगे बढ़ के शुरू करना कि मैं इसको अपने मियाद के मुताबिक फिनिश कर पाऊंगा। दैट इज राइट। कोई टूल्स और कोई तैयारी के साथ काम करना। जी, अभी सर। To become fair, this is what you are doing. अब ये खराबी ना ट्रेनर ही बच्चा हूँ। The courage, Courage. the courage, Towards courage. courage to stand in front of and face the consequences. That is the confidence. Right. Great. जी बेटा, ये कॉन्फिडेंस की एक वर्कशॉप है। आपको कॉन्फिडेंस को कुछ बोलना है कॉन्फिडेंस? For me, I think कि confidence होता है कि आप कोई बात करो, आप अपना मैसेज कन्वे करो और regardless के आपको कोई consequences उसको face करने पड़ेंगे। Right. But aren't we focused on speaking? सबके सब रेफर कर रहे हैं speaking को। ये सवाल और जवाब का सिलसिला जब हो रहा था तो मुझे ख्याल आ रहा था बाज़ दफा हम किसी को देखते हैं कि हमारी मदद की जरूरत है, मगर हमारा when we lack in confidence we can't even extend our hand for them के because we don't know, we might get rejected. They might just say कि I don't need you, I don't need your help, so we can't even extend our help at times just because of that lack of. Thank you for expanding that. Because so far we were focused on speaking. Indeed, Conveying, this action speaking, was but no, coming up. speaking is not limited. मेरा ख्याल है कॉन्फिडेंस ये एक क्वालिटी है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप जिंदगी के हर शोबे में एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी पब्लिक स्पीकिंग हो, एनीथिंग। लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस जब आता है जब आपके सेल्फ स्टीम हाई हो, और सेल्फ स्टीम वो करने के लिए हमारा मार्का बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे सेल्फ स्टीम हाई हुई बिल्कुल। कॉन्फिडेंस इज अ पर्सनालिटी ट्रेट। आपने इसको क्वालिटी कहा, इट्स अ पर्सनालिटी ट्रेट, एन एसेंशियल पर्सनालिटी ट्रेट। एसेंशियल। आप जो काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, एज अ पेरेंट, एज अ किड लर्नर, एज अ प्रोफेशनल पर्सन, कॉन्फिडेंस इज द की। आज I'm going to tell you, or I'm going to let you learn how to gain confidence with the concept of confidence of ladder of confidence. That was taught to me by an expert in neuro-linguistic programming course. कि confidence एक ladder of confidence के through आता है। हम उसको समझ के हम समझेंगे कि confidence को कितनी आसानी से we can penetrate within our souls, within ourselves, right? अगर इस ladder को हम इस तरह draw करें, and then we have सबसे टॉप पे आपको कॉन्फिडेंस है। That's what you want. Now confidence is being fearless. एक सेशन में था, मैंने उसको पूछा, किसी ने confidence is being perfect. When you're perfect, you're confident. Right? But this is the paradox. Confidence is not perfection. Nothing is perfect. Confidence का जो गेम है ना, वो असली गेम ही वो जब होता है जब आप परफेक्ट नहीं हैं, बट आप अपनी परफॉर्म करते हैं, जब आप आपको डिस्प्ले करते हैं। राइट? पहला सेशन जो समझने की, पहला पॉइंट जो सेशन में समझने का वो है कि कॉन्फिडेंस इज बीइंग fearless. You are here to err. To err is human. To forgive is divine. So we are here to err. हमने तो गलती करनी है, हम गलती करेंगे. I might make some errors within my presentation, within my training, but this does not stop me from being confident at all. This is the point. Confidence is not necessarily through your communication skills. जो हम अभी इसको envelop कर रहे थे communication में. You can be confident at swimming. You can be confident at driving. Cricket. MS Office skills. So confidence is not limited to communication. It's doing what you are doing with confidence, without the fear of making an error. We all make errors, right? What gets us to confidence? इस लैडर में हम सबसे पहले जो देखते हैं, वो सबसे पहला स्टॉप है, वो है
Competence. Competence is the door to confidence. ये algorithm है. The more the competence, the better the confidence. आप में से जिन्होंने ड्राइविंग सीखी हो, तो आप थोड़ा सा take a trip back to your memory lane and imagine जब आप गाड़ी चलाते हो तो क्यों चलाते? On the edge of the seat. Edge of your seat, all agog. अब with the passenger time, अब आप गाड़ी चलाते हैं. अब बाइक कह देती है कि भाई ध्यान दें, तवज्जो दें, एक हाथ से चला रहे हैं. With competence you gain confidence. अब आप आराम से चला रहे हो, तब आप देख भी नहीं रहे होते, साइडों को मेजर भी नहीं कर रहे होते, चला रहे हो. Competence, इसको हम उर्दू में एक बड़ा अच्छा जुमला कहते हैं कि काबिलियत एतमाद का बेहतरीन जरिया है. काबिलियत एतमाद का बेहतरीन जरिया है. अपनी कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, कॉन्फिडेंस खुद आ जाएगा. खुद बढ़े. स्विमिंग, क्रिकेट, कितने स्किल सेट्स हैं. जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ती जाती है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है. सर इसको अगर हम ये कहें कि कॉन्शियस अनकॉन्शियस जो है, That's my next topic. जब हम कॉम्पिटेंस को डाइव करते हैं, जैसे सर ने बताया, कॉम्पिटेंस को अगर आप इसको आप एक्सप्लोर करें, खोलें, तो कॉम्पिटेंस के बेसिकली 4 लेवल्स होते हैं. इन न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग देयर आर 4 लेवल्स ऑफ कॉम्पिटेंस. सबसे पहले हमारे पास एक लेवल होता है अनकॉन्शियस. क्या लिखा है? अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस. अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस को एक्सप्लेन करेगा? मैं तो करूंगा. लाशवरी तौर पे क्या मतलब आपको कुछ भी नहीं पता. आर बॉर्न बाय बॉर्न ट्रेड, कुछ भी नहीं पता. मैं नहीं जानता. अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस. इनकॉम्पिटेंस सबसे पहली चीज जो सबसे बड़ा कहना चाहिए कि ट्रॉमा है सोसाइटी का. हमें ये नहीं पता कि हमें किसमें कॉन्फिडेंस लेना है, हमें किसमें कॉन्फिडेंस लेना है. आप लोग कॉन्फिडेंस की ट्रेनिंग का सुन के आए. जब आपने कॉन्फिडेंस की ट्रेनिंग का या कॉन्फिडेंस की वर्कशॉप या कॉन्फिडेंस की टॉक का सुना तो आपको एहसास हुआ हाँ ये सीखना चाहिए. अगर ये ना होता तो आप में से कोई सोच होता किसी को बैठ के यार मुझे कॉन्फिडेंस को कुछ काम करना चाहिए, नहीं करना होता. क्योंकि हम अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस यानी कि हमें खुद भी नहीं पता हमें किस चीज में कॉन्फिडेंस लेनी है. मैं आपको उसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं ऑफिस एनवायरनमेंट से. मैंने ऑफिस एनवायरनमेंट में कुछ लोग देखे who are excelling, जो एक्सेल कर रहे हैं, और कुछ लोग देखे जो वहीं के वहीं हैं. हम इसको अपनी ट्रेनिंग की दुनिया में कहते हैं टिफिन करियर पीपल. कि सुबह टिफिन खाया, ऑफिस आए, शाम में टिफिन खाया, घर चले गए. 10 साल बाद पूछा तो वही रूटीन है. टिफिन खाया, ऑफिस आए, टिफिन खाया, घर चले गए. उनकी ग्रोथ उस हिसाब से हुई नहीं जितनी ग्रोथ उनकी पेयर्स की हुई, उनके कंटेम्पररीज की हुई. क्योंकि वो इस टाइम में थे अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस. उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें किस चीज में कॉन्फिडेंस लेनी है, किस चीज में कॉन्फिडेंस लेना है, कहां ग्रो करना है, कहां तरक्की करनी है. मैं आज भी ऐसे लोग देखता हूं ऑफिस के अंदर जिन्हें एमएस ऑफिस नहीं आता. they don't even pursue to कुछ करना ही नहीं. मैंने आज भी ऐसे लोग देखे जिन्हें वेब मेल से ईमेल चेक करना सिखाना पड़ता. अगर गोल नहीं सेट किया, एक्चुअली बेटा उन्हें गोल भी नहीं पता ही नहीं. गोल है कि ये भी नहीं पता. सेट ही नहीं किया. फिर वो कहते हैं यार हमें, फिर मैं उनसे जब पूछता हूँ कि आप इस पोजीशन में क्यों है, मेरा लग सही. They don't even know what the goal is actually. गोल पे मैं एक जगह फॉर्म मोटर्स बड़ी मशहूर कंपनी है, उसमें मैं ट्रेनिंग दे रहा था. उसमें मैंने यही मिसाल दी कि एक साहब को उठाया, उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, एक साहब को उठाया आप क्या करते हैं. तो यही समझाने की कोशिश की कि वेक अप फ्रॉम दिस लंबा, इस नींद से जागे, ये भी पहचाने कि मुझे कॉन्फिडेंस लेनी है, किस चीज में लेनी है, और कॉन्फिडेंस के सेट को बढ़ाते हैं. राइट. दूसरी कैटेगरी आती है कॉन्शियस इसे कहते हैं शऊर की दुनिया में पहला रहा. कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस. मैं जानता हूँ कि क्या नहीं जानता. You know what you don't know. कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस आसान हो गया आपके लिए.
अब आपको शौक आ गया कि मुझे ये चीज सीखनी है। लोगों को अपनी वीकनेस पता होती है कि लोगों मुझे को किस पता चल पर वर्क गया करना है। किस पे काम करना है, क्या वीकनेस है। बाकी सब्जेक्ट तो अच्छे हैं मगर मैथ्स स्पेशल करना है फोकस, उस पे मुझे 4 आवर्ली स्टडी करनी है, बाकी तो 1 आवर्ली 2 आवर्ली स्टडी हो जाएंगे, राइट। ये स्किल है। मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल MS ऑफिस आना बहुत जरूरी है। ऑफिस के अंदर मुझे MS ऑफिस, एक्सेल पे कमांड मेरी बहुत जरूरी। आई नीड टू फोकस ऑन माई प्रेजेंटेशन स्किल्स, आई नीड टू वर्क ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये जब शौक आ जाता है तो आपका सफर कॉन्फिडेंस का शुरू है। फिर आपकी कॉन्फिडेंस की तीसरी कैटेगरी आइडिया Conscious confidence. फिर क्या करते हैं आप उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। MS ऑफिस का कोर्स करना शुरू करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कर देते हैं, कम्युनिकेशन बिजनेस इंग्लिश का कोर्स कर देते हैं, लेटर राइटिंग का कोर्स कर देते हैं, मैथ्स के स्पेशल क्लासेस कर देते हैं। एंड देन आपके पास फिर वो कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, यहाँ से पहला स्टेप लिया कि आपने कहा मुझे क्या नहीं आता, ये पहले जाना, अब आपने उसको सीख लिया, अब आपकी कॉन्शियस कॉम्पिटेंस आ गई। पता लग गया कि मुझे पता है कि क्या मुझे पता है। अब मुझे पता चल गया कि मुझे क्या आता है, यहाँ तो मुझे पता चल गया कि क्या मुझे सीखना है। अभी मैंने सीख लिया, मुझे एक्सेल अच्छा आता है, मिसाल मुझे प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आई नो हाउ टू आर्टिकुलेट। फिर आती है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस नेक्स्ट आती है। उसका मतलब होता है कि अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, ये एक्सपर्टीज लेवल, ये हैबिट। उनको ये नहीं पता होता कि उनको क्या पता है। ये वो वाली गाड़ी चला रहे हैं जो आप एक हाथ से चला रहे हैं, पायलट पे चले जाते हैं। Unconscious competence. That is habit. ऑटो को पायलट। अच्छा हम उसको और समझें। डिफॉल्ट में कंप्यूटर की डिफॉल्ट सेटिंग होती है ना, अब हमारी डिफॉल्ट सेटिंग में आते हैं। मोबाइल यूज करते हुए आप कोई मैनुअल पढ़ते हैं, कुछ सोचते हैं कौन सा बटन दबाना, मैसेज करते हुए कोई मैनुअल कुछ सोचते हैं स्टेप्स। अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस जो है वो एक्सपर्टीज लेवल है जब आप सोचते ही नहीं, सोचे बगैर काम। डिफॉल्ट सेटिंग पे गाड़ी में बैठे डेस्टिनेशन में गाड़ी गेयर लगा और चलना शुरू कर दिया। सर इसकी छोटी सी एग्जांपल कि आप घर से निकलते हैं, PACC आ जाते हैं, आपको दरमियान में ये नहीं पता लगता कि दरमियान में क्या हो रहा है। आप अपनी जो फ्रेम ऑफ माइंड में कुछ और काम कर रहे हैं वो करते चले जाते हैं और आप इस पूरे अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस में पूरी की पूरी ड्राइविंग करके आप हैदराबाद तक चले जाएंगे, आपको एनवायरनमेंट का पता ही नहीं होगा कि उससे क्या हो रहा है। कोई लड़की गाड़ी चलाती अच्छा मुझे आपको मुझे ना माइंडफुलनेस की एक पॉइंट बता दिया। माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग में एक पॉइंट होता है, बड़ा अच्छा पॉइंट है। अब देखें जिसके पास मल्टीपल स्किल्स हो ना उसके पास ये बड़ी खराबी होती है कि टॉपिक है। अब देखिए मुझसे राम नहीं जा रहा कि मैं कॉन्फिडेंस है कि आपको बताऊं, इसको कहते हैं रोड हिप्नोसिस। माइंडफुलनेस की दुनिया में इसे कहते हैं रोड हिप्नोसिस। आप घर से यहाँ आए, आपने घर से यहाँ आते वक्त देखा कितने पेट्रोल पंप्स थे, कितने हॉस्पिटल थे, आप रोड हिप्नोसिस में होते हैं, गाड़ी रोड हिप्नोसिस में चलती है। तेज बारिश हो रही थी लेकिन फोकस थे, आपने वहां जाना है, वहां जाना है। बहुत सी चीजें मिस आउट करके आ रहे हो। And you miss out the most pleasurable experiences in life as well. Sometimes Automatically you are out of touch also. इतना अच्छा एनवायरनमेंट इस वक्त है, आप बड़ा एंजॉय भी कर सकते हैं। अच्छा ये तो एक दीगर चीज है, बट रोड हिप्नोसिस is a very bad thing that we need to work on. रोड हिप्नोसिस कोई अच्छी चीज नहीं है। We have to be conscious, we have to be in present all the time. That's what mindfulness say. Be in present. Don't be lost. गुम नहीं होना है। रिजवान के लिए नहीं सर, इसका एक एडवांटेज भी है, एक डिसएडवांटेज भी। राइट। एडवांटेज ये है कि यू आर वेरी फोकस्ड वेयर यू हैव टू गो। ठीक है, आपने सिचुएशन को जरूर देखना है साइडों की, और साथ साथ उसको वो एनालाइज भी करना है कि कैसे आपने पहुंचना है। ठीक है, उसमें आप बहुत फोकस हो जाते हो जब रोड हिप्नोसिस में होते हो आपके, है ना। ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि आपने जो है ना सिर्फ एक ही एस्पेक्ट ऑफ उसके वो नहीं यानी खतरात को जो है ना नेग्लेक्ट कर देते हो आप। राइट। रोड हिप्नोसिस अपार्ट, लेट्स फोकस ऑन अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। ये वो हेड ऑफ स्किल है जिसे हमें लेना है। किसी भी काम को करने में ऐसी एक्सपर्टीज चाहिए, ऐसी एक्सपर्टीज। जब ये कॉम्पिटेंस आती है ना उसका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। जब आप
एक हाइट पे खड़े होकर पूल पे डाइव करते हैं तो सब डर जाते हैं, जैसे फैमिली कह रही है क्या है, आपका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। आप इतनी हाइट से डाइव करते हैं, बच्चे मेरे चीज होते हैं, ये स्टुपिडिटी है, लेकिन मुझे पता है मैं स्विमिंग जानता हूँ, मैं कर दूंगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना आपका, फिर ये आपको एक अल्टीमेट कॉन्फिडेंस देता है। अपने आप के ऊपर इतना बिलीव रखना कि मैं ये गलत कर नहीं सकता। इज डिफरेंट। अवेयरनेस, नॉलेज, पता है मुझे आता है, मुझे ड्राइविंग आती है। बट अगेन देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। इसका हमेशा ख्याल रखना, ठीक है? ये लाइक विद अ फ्लिक ऑफ अ सेकंड आप पास कर जाते हैं। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंस आता है, तो कॉन्फिडेंस कैसे आती है? ट्रेनिंग सर, प्रैक्टिस। Put your efforts. Practice makes a man perfect. Nobody is perfect. Not nobody. पैराडॉक्स, जैसे माइंड साइंस में कहते हैं पैराडॉक्स, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट बट नोबडी इज परफेक्ट। कॉन्फिडेंस की अचीवमेंट के लिए यू नीड टू practice. Practice is the only way to gain confidence. NLP में जुमला है, I was wondering if you people had some paper to write down because यहाँ takeaways बहुत सारे थे, मतलब learning के points बहुत सारे थे, which you probably and most probably end up forgetting at the end of the. अच्छा, we have to record it. चलो, thank God. And then you notes. Already get it. Okay. तो प्रैक्टिस में NLP में एक जुमला कहते हैं जो आप बार बार दोहराए थे, repetition is the mother of skill. Mother of Skills. Repetition is the mother of skills. देखिए, हर बॉडी बिल्डिंग की तरह स्किल सेट भी ना फ्लेक्स करने से आता है। The more you flex, the better you get. The more you flex, the better you get. Practice repetition का नाम है। Repeating. जब तक आपके अंदर वो एक कॉन्शियस कॉम्पिटेंस ना आ जाए, and then you excel to unconscious competence, right? Practice makes perfect to some extent. सभी गलती करें। तो मैं मैथ्स के टीचर जब भी है ना, वो कोई गलती करके लाता था, उसे कहते थे इसको उसको सही करके दे देते, कहते थे इसको 100 मरतबा करके लेके आओ। That's what giving you cognition and Sometimes हमें cognition की जरूरत नहीं है। Cognition लॉजिक पे आती है। मुझे मैथ में लॉजिक नहीं करना है, मुझे सिर्फ सीखना है कि ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये करना है, इस तरह आएगा। So just applying 1 like 2 plus 2 and doing it 100 times. 2 plus 2 No. फिर पढ़ने का दिल भी नहीं करता, फिर सीखने का दिल But भी every नहीं time you given a new challenge. अभी जो आपने कहा ना 2 plus 2 is 5 और 2 plus 2 is 4, ये लर्निंग है, रेपिटेशन है। कॉग्निशन कहता है 2 plus 2 5 क्यों नहीं हो सकता, ये कॉग्निशन है। अभी जिस लेवल को उन्होंने रेफर किया, इनका कॉग्निशन का लेवल नहीं था कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे वजूद में आया, क्या हुआ। अभी इनको बच्चों को फोकस करना कि है समझना। लाइक हम जब ओ लेवल में जाते हैं तो कई हमें रेफरेंसिंग दी जाती है ना कि इसके लिए आप नेट से सर्च करके डिटेल लेके आए, कॉग्निशन भी दी जाती है, बट मैथ इज समथिंग वहां हमें लॉजिक पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है, तो समझना पड़ता है, राइट। और And that's where we lack the most. दैट्स व्हाट वी लैक द मोस्ट। बिल्कुल But at some point in time. बच्चों के ग्रोथ में कॉग्निटिव ग्रोथ भी बहुत जरूरी है। कुछ चीजों पे बच्चों को क्वेश्चन करने की, सोचने की आजादी होनी चाहिए, बल्कि उनमें स्किल सेट होना चाहिए कि वो सोचें और सवाल करें। अगर नहीं है तो ये भी परेशान बात। I have a question. Yes. How about the talent? Because I have seen a lot of batsmen, they are beautiful, but when you go to Dulkar, you see him that he has got that conscious confidence which he has, like he executes his shot. So I am trying my level best, I'm practicing, I'm doing everything, but I don't have that knack of a batsman where I see the right ball at the right place at the right time. So how much the talent is there? Because I have seen many people. I saw a painter who painted beautiful things, but I found out that his personality was not matching his work. And the reason was he did a lot of practice and he was a gimmick. He was just taking and tracing and taking somebody's idea. But how much is the talent is behind the confidence? Thank you for helping me refer to my next point, that is purely related to your query. Actually होता क्या है, प्रैक्टिस के लिए हमें नेक्स्ट कॉन्फिडेंस के लिए हमें कॉम्पिटेंस चाहिए, कॉम्पिटेंस के लिए आप अटेंड
कीजिएगा इस चीज़ Yes, को। yes. कॉन्फिडेंस के लिए कॉम्पिटेंस चाहिए, कॉम्पिटेंस के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस किसकी करनी है, प्रैक्टिस के लिए आपको कंसिस्टेंसी खुद ही प्रैक्टिस है, लर्न। First of all, एक्चुअली होता क्या है, समटाइम्स वी गेट इनटू अ डेल्यूजन टाइप थिंग्स ना, हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम आता है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट वी आर इन द रॉन्ग डायरेक्शन। लर्न क्या है? अच्छा, इसको इस तरह समझो, स्पीड इंपॉर्टेंट है या डायरेक्शन? Direction. both. Both. But importance के हिसाब से direction is more important. एग्जैक्टली, डायरेक्शन इज मस्ट। डायरेक्शन का नहीं पता, स्पीड का क्या करूं? अरे बेटा, स्पीड चाहे स्नेल हो, इवन इफ यू आर एट स्नेल पेस, someday you'll get there. But if you're in the wrong direction, आपकी जितनी तेज स्पीड हो, अब आप पेंटिंग की शौक उठा, आपने पेंटिंग की प्रैक्टिस शुरू की, अब आपने पेंटिंग को लर्न नहीं किया, आप प्रैक्टिस किया नहीं। वो टेनिस शूज है ना, 10,000 आवर्स में आपको स्किल आ जाती है, आपने 10,000 लगा दिए बगैर लर्न किए, तो उसके बाद आप ग्राफिटी आर्ट ही बनाएंगे ना, पेंट तो नहीं बनाएंगे, आप ग्राफिटी कर देंगे वॉल। समझिए इस चीज को, ट्राई एंड अंडरस्टैंड माय डियर, यू नीड टू लर्न बिफोर प्रैक्टिसिंग, लर्न एंड देन प्रैक्टिस। एंड आप सुनते हैं ना वो हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, या वो नीम हकीम खतरा जान और नीम मुल्ला खतरा ईमान, तो ये बात बहुत जरूरी है कि अगर आपने लर्न सही नहीं किया और प्रैक्टिस शुरू कर दी, तो फिर यू एंड अप इन स्मोक। समझिए इस चीज को, जो इनका सवाल था कि मैं बैट्समैन हूं, मैं बैटिंग की प्रैक्टिस भी करता हूं, बट डिड यू लर्न थॉरली और राइटली एंड थॉरली? दो डिफरेंट चीजें। आपने सही सीखा है, सही बंदे से सीखा है, सही तरीके से सीखा है। यस सर। That's what, when you ask the definition of confidence as clarity, clarity comes with learning, direction, speed, talent, and all those things. Clarity is all about that very confidence that I can, what is my real goal? This is what this young girl said. This is why knowing your goal makes you more confident and you keep on moving in that direction. That was the reason I didn't explore on your topic. Clarity, but when I say clarity is attached to goal setting. You need to have clarity before setting a goal. Vague goals fail. But aren't they connected together? Because if I know I'm going to San Francisco and my goal is very clear and I need to take the best optimum flight, what I'm going to do, I'm going to design that very map which will lead me to that point with the minimum expenses. So I believe this is where the confidence comes in. That's where the confidence diverge. Okay. आपने कहा मुझे सैन फ्रांसिस्को जाना है, मैंने उसका टिकट लिया, गोल मेरे सेट है, मुझे पता है कितने दिन में सब कुछ सही जा रहा है, बट यहाँ से कॉन्फिडेंस ट्रफ अपनी बदल लेता है। अभी हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू बी कॉन्फिडेंट As a human. एंड नॉट नेसेसरली इन कम्युनिकेशन। बात As a है human. In every walk of in life. every walk of life, in every sphere of life. Even ठीक extending है, that. जिंदगी का जो भी स्पेयर है, आप एक एज अ पेरेंट हैं, तो एज अ पेरेंट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, राइट? आप लर्नर हैं, आप जॉब पे जाते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, व्हाटएवर, आप प्रोफेशनल हैं, किसी स्किल ओरिएंटेड पर्सन है, यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस। अभी हम उसकी बात करें, वो कैसे आएगा? फिर दोहराता हूं, वो किस तरह आएगा? कॉम्पिटेंस से आएगा। कॉम्पिटेंस कैसे बढ़ेगी? प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस के लिए क्या जरूरी है? लर्न करना। लर्न क्या है? डायरेक्शन। So let me share again an experience. I met this person at Godhead Institute, and he was not very sure. He was in corporate world. I could tell that very learned person, but he was lacking a fire there. Would you have put a post in it? After 4-5 years, I met him again, and I found out that he's left that, and there was this person completely transformed, talking with passion, but now he's pursuing, he did some certifications as chef. That has transformed his life. He always had that, that inner fire, that passion to cook. He could understand, he could create recipes. Whereas he was a misfit where he was, and that since he didn't have the drive to it. Is that the talent? If we can ask a question. Is that the talent that fires you? If you want to do that? Because I know a lot of my friends are the best pilots in this world, or one of the best pilots.
But what was the real thing was that they had this passion to become a pilot or a shooter. You know, I have a friend who's a perfect sharp shooter. The only thing is that very passion which the ladies talk What about. drives? That talent. Actually, आपने इनकी बात इनकी जो पॉइंट ऑफ स्टांस था उसमें एक पॉइंट मिस किया कि पहले वो हुआ मिसफिट देन उसने फिर वो Direction change किया. He changed direction. This is the point. Direction. The motivation, The that motivation. drive, inner drive was there then. You need to follow your passion कहते हैं ना. Let your heart rule over your head. हेड तो आपको सेफ्टी रिस्क एनालिसिस सब माइंड तो आपको ये कहता रहेगा खबरदार Comfort zone से नहीं सिंगल वर्ड अगर मैं ऐसे कहूँ तो एक्सेप्टेंस से स्टार्ट होती है ये सारी चीजें. एक्सेप्टेंस ऑफ क्या, जब हमें कुछ बताया जाता है कि यार ये अगर फर्ज करें मेरी स्वामी मुझे बताएगा कि ये तुम्हारे अंदर कमी है, इसको ओवरकम करो, अगर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ तो मेरी डायरेक्शन ही गलत है. ठीक है ना. और जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो मैं